आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आज की आराधना का जो संडे हमको दिया गया है वो 6th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट है और थीम जो हमारे लिए है वो है बी डूअर्स नॉट मेयरली हियर्स ऑफ द वर्ड। वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। परमेश्वर की ओर से आज हमको ये थीम हमारे लिए दिया गया है। आइए अपनी आराधना को हम शुरू करें। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के अकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। आप हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम बड़ी दीनता के साथ आपसे विनती करते हैं कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनिए जो आपकी दुहाई देते हैं। वर दीजिए कि जो कार्य उन्हें करना चाहिए उसको वो समझें और जानें और सच्चाई से उन कार्यों के करने के लिए उन्हें अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और पुराने नियम में से हमारे लिए पढ़ा जाएगा। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7वां अध्याय उसके पहले पद से 15 पद तक। Praise the Lord. Today's reading has been taken from the book of Jeremiah, chapter 7, verses 1 to 15. Trusting in lying words. The word that came to Jeremiah from the Lord, saying, Stand in the gate of the Lord's house, and proclaim there this word, and say, Hear the word of the Lord, all you of Judah, who enter in at these gates to worship the Lord. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, Amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Do not trust in these lying words, saying, The temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. For if you thoroughly amend your ways and your doings, if you thoroughly execute judgment between a man and his neighbor, if you do not oppress the stranger, the fatherless, and the widow, and do not shed innocent blood in this place, or walk after other gods to your hurt, then I will cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers forever and ever. Behold, you trust in lying words that cannot profit. Will you steal, murder, commit adultery, swear falsely, burn incense to Baal, and walk after other gods whom you do not know, and then come and stand before me in this house, which is called by my name, and say,
we are delivered to do all these abominations? Has this house, which is called by my name, become a den of thieves in your eyes? Behold, I, even I, have seen it, says the Lord. But go now to my place, which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to it because of the wickedness of my people Israel. And now, because you have done all these works, says the Lord, and I spoke to you, rising up early and speaking, but you did not hear, and I called you, but you did not answer. Therefore, I will do to the house which is called by my name, in which you trust, and to this place which I gave to you and your fathers, as I have done to Shiloh. And I will cast you out of my sight, as I have cast out all your brethren, the whole posterity of Ephraim. This is the word of God. आइए हम नए नियम से सुनेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 22 पद से 27 पद तक। हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे याकूब पहला बाब 22 से 27 आयत तक। वहाँ यूँ लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखता चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ये परमेश्वर का वचन है, पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। इस समय हम सुसमाचार में से सुनेंगे। हम खड़े हो सकते हैं अपनी अपनी जगहों पर जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और उसके 21 पद से 29 पद तक। Gospel according to Saint Matthew, 7th chapter, beginning from 21st verse। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना चट्टान पर घर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्यों के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। ये मसीह का सुसमाचार है। आइए, समय होगा कि हम आज परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे और पादी
मॉरिसन रोज आज हमारे लिए परमेश्वर के संदेश को पेश करेंगे। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, पेंतेकुस्त के बाद का आज छठा रविवार और हमारी आराधना के लिए जो विषय दिया गया है वह है वचन के सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले भी बनो। बी डूअर्स नॉट मेयरली हियर्स ऑफ द वर्ड। हमने जीवन में देखा है कि किसी भी मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों से उसके चरित्र या कैरेक्टर का पता लगता है तथा वो किस धर्म या रिलीजन का फॉलोअर है। इसका मनुष्य के व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव रहता है। संसार में ऐसे बहुत से मसीही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ा, जाना और उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य किए। विद द रिजल्ट बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हो गए। इसी कंटेस्ट में हमारे देश में मदर टेरेसा का नाम सबसे ऊपर आता है। लोग उनके बारे में कुछ भी कमेंट करें, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सेवकाइयों के और कार्यों के द्वारा वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं और बहुत से लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बनी। और मदर टेरेसा की वजह से बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवकाई में लगाया और उनकी इस सच्ची लगन की वजह से संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ा, जाना और उसको अपने जीवन में अपनाया और उसके अनुसार कार्य किए। मदर टेरेसा ने कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन मिशनरी ऑफ चैरिटी की जिसके लिए वो कार्य करती थी, उस कार्य की कभी उन्होंने पब्लिसिटी नहीं की और ना ही उन्होंने उसके बारे में किसी से डोनेशन मांगा। लेकिन प्रभु ने उनके कार्य में कभी भी किसी प्रकार की रुकावट या कमी नहीं आने दी। और हमारे देश भारत में भी मदर टेरेसा की सेवकाई को देखते हुए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और जब मदर टेरेसा को प्रेसिडेंट हाउस में भारत रत्न देने के लिए बुलाया गया तो उस समय हमारे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदि सब उपस्थित थे। तभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मदर टेरेसा से पूछा कि मदर, हमारे देश में हमारे पास बेस्ट डॉक्टर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर प्रकार के हेल्थ इक्विपमेंट, डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स एंड कंप्लीट लॉजिस्टिक भरमार है, परंतु फिर भी हमारे देश के लोग जो हैं वो आपको पूछते हैं। मदर ने कहा, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हुए उस पर चलते हैं। हमारे प्रभु ने हमें सेवकाई सिखाई है और वही हम करते हैं, जबकि आपके लोग अपने सीनियर्स या मिनिस्टर्स या बॉसेस को खुश करने के लिए कार्य करते हैं। और उन्होंने अपना हाथ ऊपर आकाश की ओर उठाकर कहा कि हम अपने प्रभु के लिए कार्य करते हैं। मदर टेरेसा के इस बात को सुनकर पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया।
इसी प्रकार हम देखते हैं मदर टेरेसा की तरह संसार में बहुत से पॉपुलर लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और उसको फॉलो किया, और प्रभु ने उनको नेम, फेम, जॉय, पीस आदि से उनके जीवन को भर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल लाओ। आज के ज़माने में के लोग जिन्होंने वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन में कार्य किया, ऐसे बहुत से लोग हैं। कुछ नाम हैं जैसे बिली ग्राहम, बेनी हिन, रवि ज़करियास, जॉन हगाई, अब्दुल हक, रिक वारन, और हम अपने देश में देखते हैं पॉल दिनाकर, जिनको प्रभु ने नेम, फेम, जॉय, पॉपुलैरिटी व हर तरीके की आशीषें उनको दी, क्योंकि इन सब ने वचन को सुनकर उसके अनुसार कार्य किया और इस प्रकार उन्होंने संसार की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है कि वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के राजदूत हैं। जब हम प्रभु के कार्य वचन के अनुसार कार्य करते हैं तो हम उसके राजदूत या एम्बेसडर बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य की वीकनेस है कि वो लाइमलाइट में बना रहना चाहता है, नेम और फेम के लिए वो क्या है, पीछे भागता है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी मसीह के दास थे जिन्होंने वचन के अनुसार ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट व डेडिकेशन के साथ कार्य किया, परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार से आशीषित किया। अर्थात जो मनुष्य जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में चाहा था उनको मिला। मैं सोचता हूँ कि हमारी कॉन्ग्रीगेशन में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी ये गवाही होगी कि जिन्होंने प्रभु को फॉलो किया, प्रभु ने उनको हर प्रकार की आशीष जो है उनको दी। आज हम अपनी रीडिंग्स को देखते हैं, पुराने नियम की रीडिंग जो कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 1 से 15 पद तक। इस पैसेज को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रभु के वचन को ध्यान से सुने और उस पर चलें, ना कि हम उसे एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। हमने देखा है कि जो बच्चे स्कूल, कॉलेज में टीचर द्वारा पढ़ाए गए लेसन्स या लेक्चरर्स को ध्यान से नहीं सुनते या पढ़ाई हाफ हार्टेडली करते हैं, उनका रिज़ल्ट क्या होता है वो हम सबको मालूम है। उसी प्रकार से प्रभु का वचन भी है कि यदि हम भी उसको सुना अनसुना करेंगे और प्रभु के कार्य को अगर हम हाफ हार्टेडली करेंगे तो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो हम लोगों को नहीं मिलेंगे। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय 30वें पद में कहा है कि अपनी चाल और कामों को सुधारो। तो ऐसा उस समय भी होता था कि मनुष्य के कार्य ठीक नहीं थे, इसीलिए यिर्मयाह नबी इस बात को कहते हैं कि मनुष्य अपनी चाल और कामों को सुधारे। और आगे लिखा है कि मनुष्य के बीच न्याय करे, परदेसी, अनाथ, विधवा पर अंधेर ना करो, क्योंकि ये तीनों लोग जो हैं वो असहाय होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता, दूसरों के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं और उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, वो दया के पात्र होते हैं। तो वचन में हमें ये बताया गया है कि हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। और वचन में आगे लिखा है कि दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो। प्राय ऐसा देखने में आता है कि जब भी मनुष्य किसी दुविधा
मुश्किल, परेशानी या परीक्षा में होता है तो उसका विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है और वो सहायता के लिए कई बार अपने फ्रेंड से हेल्प मांगता है। कुछ फ्रेंड्स सही तरीके से गाइड कर देते हैं और बहुत से क्या है मिसगाइड कर देते हैं कि तुम्हारी समस्या का समाधान जो है वहाँ जाने से होगा। तो मानसिक रूप से कमज़ोर मनुष्य जो है वो बहक जाता है। इसलिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक में ये कॉशन दिया गया है कि हमें दूसरे देवताओं के पीछे अगर हम जाएंगे तो हमारी हानि होगी, अर्थात हमें परिस्थितियाँ कैसी भी रहें हमें अपने प्रभु को छोड़कर दूसरों के पीछे नहीं जाना है। और 8वें वर्ष में लिखा है कि झूठी बातों पर भरोसा ना रखें। चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठी शपथ खाने से ये ऐसे कार्य हैं जो कि हमें प्रभु से दूर रखती हैं और हमारी ज़िंदगी में कलंक लगा देते हैं। तो यिर्मयाह नबी हमें यहाँ ये बात सिखाते हैं कि अगर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, जैसे कि आज का हमारा थीम है कि वचन को हम ध्यान से सुनें और उस पर चलें। इसी के साथ ही जब हम आज की न्यू टेस्टामेंट याकूब की पत्री को हम देखते हैं तो वहाँ पर भी आज के हमारे इस थीम को कि वचन को सुनने वाले ही नहीं बन के उसके अनुसार कार्य करने वाले बने, इसको रिपीट किया गया है। याकूब 1 अध्याय 22 पद में लिखा है कि अगर हम वचन को केवल सुनते हैं और उस पर हम चलते नहीं हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और मनुष्य का यह स्वभाव है कि वो हमेशा अपने आप को धोखे से दूर रखना मांगता है। और याकूब आगे अपनी पत्री में लिखते हैं कि अगर मनुष्य प्रभु के वचन को सुनकर उस पर चलेगा तो वो प्रभु की ओर से आशीषित होगा। हम में से कोई भी अपने आप को प्रभु के आशीषों से कोई भी अलग रखना नहीं मांगेगा। इसलिए हम वचन को सुने और उस पर चले। आगे 27 पद में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि हम, जैसे कि यिर्मयाह में भी ये बात बताई गई है, कि हम अनाथों और विधवाओं की दुख तकलीफ में उनकी सुधि लें और अपने आप को इस संसार में रहते हुए निष्कलंक रखें। लेकिन इस संसार में रहते हुए अपने आप को निष्कलंक रखना एक चुनौतीपूर्ण कदम है। मनुष्य हर समय टेम्पटेशन में घिरा रहता है। कई बार वो चाहते हुए और ना चाहते हुए भी ऐसा कार्य कर जाता है कि जिससे उसके जीवन में उसको कलंक लग जाता है। जब हम गॉस्पेल पैसेज को देखते हैं जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 से 29वें पद तक दिया गया है, वहाँ पर भी हम आज पाते हैं कि हमारे आज के थीम को रिपीट किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रभु के वचन को सुने और उस पर चलें। 21वें पद में बताया गया है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की एक कंडीशन है और वो ये है कि जो पिता की इच्छा पर चलता है, अर्थात वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो उसे स्वर्ग में राज्य के प्रवेश करने को मिलेगा। हम जीवन में देखते हैं कि जीवन में 2 प्रकार के मार्ग हैं। एक मार्ग है कि स्वयं को प्रसन्न करने वाला, जिसका चुनाव जो है अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन वो हम सबको विनाश की ओर लेकर जाता है। और दूसरा जो मार्ग है वो सकरा मार्ग है, अर्थात नैरो रोड है, जो कठिन रास्ता है, जहाँ पर हमने अपने आप का इनकार करना है और प्रभु को
एक्सेप्ट करना है। और ये जो नैरो रोड है ये हमें अच्छे जीवन की ओर लेकर जाता है। एंड चॉइस इज आवर्स, कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। आगे 22वें और 23वें पद में हम पाते हैं कि उन लोगों के लिए एक वार्निंग या चेतावनी दी गई है कि जो प्रभु के समय में भी ऐसे लोग थे जो झूठी भविष्यवाणी करते थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, आश्चर्यकर्म करते थे, अद्भुत एवं प्रभावकारी बातें करते थे। आज भी लोग इसी प्रकार के कार्य हम देखते हैं, इस संसार में लोग करते हैं। और आज जो है वो लोग ये कहते हैं कि हम प्रभु के दूत हैं, प्रभु ने हमें चुना है। लेकिन आज का वचन में ये बताता है कि प्रभु ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। आगे पढ़ते हैं 23वें वर्ष में, वो कहता है कि हे कुकर्म करने वाले लोगों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जबकि ऐसे लोग दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु की नज़रों में ऐसे लोगों की कोई पहचान नहीं है और प्रभु उनको एक्सेप्ट नहीं करते। आगे 24 से 27वें पद में घर बनाने वाले दो मनुष्यों का वर्णन है, जिसको कि हम शायद संडे स्कूल से सुनते आ रहे हैं। एक को बुद्धिमान और दूसरे को मूर्ख कहा गया है। 24वें पद में हम पाते हैं कि प्रभु की नज़रों में वो मनुष्य बुद्धिमान है जो कोई वचन की बातें सुनकर उसका पालन करता है, और उसकी तुलना उस मनुष्य से की गई है कि जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। हम सब जानते हैं कि चट्टान में नींव खोदना एक जटिल और बहुत ही मुश्किल काम है, परंतु चट्टान पर मकान बनाना मीन्स नींव को सुदृढ़ या स्ट्रॉन्ग बनाना। फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, मकान जो है आपका स्थिर रहेगा। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन की नींव को इसी प्रकार से डालना है। झूठे भविष्यवक्ता या नबी हमारे सामने आकर कुछ भी कहें, अगर हमारा विश्वास मजबूत है, अर्थात हमारी नींव जो है चट्टान के पर बनी हुई है, तो हम क्या है, स्थिर रहेंगे। और यही प्रभु हमसे चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो हमारे कामों में उतरना चाहिए और हमारे जो सिद्धांत हैं वो व्यवहार में बदलने चाहिए। दूसरे जो व्यक्ति की बात की गई, मूर्ख व्यक्ति सरल मार्ग को अपनाता है। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को ना अपनाकर अपना ही मार्ग अपनाना सरल है। मूर्ख व्यक्ति में कोई दूरदृष्टि नहीं है। वो इस बात को नहीं सोचता कि आने वाले समय में क्या होगा। रेत को खोदकर घर बनाना एक बहुत आसान काम है, परंतु रेत पर बनाया घर मौसम की मार को सहन नहीं कर सकता। बारिश आएगी, तूफान आएगा तो मकान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं परंतु ध्यान नहीं देते। ज्ञान की बातों को वो लोग क्या अपने पास नहीं रखते। दूरदृष्टि अगर हम अपने जीवन में देखें तो सदा सही दृष्टि होती है, और हमें अपने जीवन की नींव प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर अगर हम रखेंगे तो जीवन में जो भी तूफान आते हैं वो उसे हिला नहीं सकेंगे। आज का घर बनाने वाला सिद्धांत दोनों ही पक्षों में हमें ये सिखाता है कि जीवन में सही नींव डालना कितना आवश्यक है। जैसे कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कड़वी से कड़वी दवा
ये टैबलेट लेते हैं। डॉक्टर द्वारा बताए गए नियमों का चाहे वो कितना ही कठिन हो, हम उसका पालन करते हैं क्योंकि हम ठीक होना चाहते हैं। अगर हम डॉक्टर की एडवाइस को अनसुना करेंगे या उसका पालन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम ही सफ़र करेंगे और जल्दी से हम ठीक नहीं होंगे। इसी प्रकार से हम संडे को चर्च में आकर, बट नॉट नाउ डेज, वचन को पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं। अगर हम उसको व्यवहारिक रूप नहीं देंगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो प्रभु हमसे पूर्ण आज्ञा पालन की मांग करते हैं। यीशु का यह दावा है कि उसकी आज्ञा का पालन करना ही जीवन की एकमात्र पक्की नींव है। और उसका यह वायदा है कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, पर जो जीवन यीशु की आज्ञा पालन करने की नींव पर बना है, वो जीवन जो है हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो हम परमेश्वर के वचन को सुनने व उस पर चलने वाले बने तो हम लोगों को 7 प्रकार की आशीषें मिलेंगी। पहली है, अगर हम वचन को सुनते और उस पर चलते हैं तो क्या है, वचन हमें पाप से बचाता है। भजन संहिता 119वां अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है कि तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। दूसरा क्या है, जो वचन को पढ़ते हैं उस पर चलते हैं उसको जन्म देता है। याकूब 1:18 पद के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। और तीसरा है, स्वतंत्र करता है, आज़ादी मिलती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 32वें पद में लिखा है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और चौथी आशीष है कि वो हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 30वें पद में लिखा है, तुम तो वचन के कारण शुद्ध हो। और 5वीं आशीष है कि वो चंगा करता है। भजन संहिता 107 अध्याय 20वें पद में कि वह अपने वचन के द्वारा हमें चंगाई देता है। और छठा है कि वो हमें समझ प्रदान करता है। ये भी भजन संहिता 119वां अध्याय उसके 130वें पद में कि वो समझ बूझ हमें देता है। और 7वीं आशीष है कि वो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 17 पद में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अगर हम अपने जीवन में ये चाहते हैं कि प्रभु की 7 आशीषें आपको निरंतर मिलती रहें, तो आज के हमारे थीम के अनुसार हम सब वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु वचन के अनुसार कार्य करने वाले बने। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, अपनी महिमा के लिए आप सब लोगों को इस्तेमाल कराइए। प्रार्थना करेंगे। दयालु दयामय ईश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आकर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए, जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी, जहाँ पर कि आज हमने जाना है कि हम प्रभु जी वचन के सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पर हम चलने वालों हों और उसके अनुसार कार्य करने वाले हों। प्रभु जी, आप हमारे विचारों को शुद्ध करें, शैतानी ताकतों को हमसे दूर रखें और अपने इस वचन को हमारे हृदय की गहराइयों में बसने दें, ताकि प्रभु जी हम उस पर चलने वाले हो सकें। अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। पादरी मॉरिसन दोस्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए जो उन्होंने दिया है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जिस तरह से उन्होंने वचन के द्वारा से हमें समझाया है, हम उस पर चलने वाले बन सकें। आइए, समय होगा कि हम इंटरसेशनरी प्रेयर के लिए जाएंगे। सिफारिशी दुआएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह के दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आया आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं
कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदाबंद उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदाबंद उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदाबंद तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदाबंद उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं। खासकर हम दुआ करेंगे मिसेस एलिजाबेथ, मिसेस लवी दास, जो प्रभु जी बीमार हैं। प्रभु जी अपना शिफा से भरा हुआ हाथ इन पर रखे ताकि ये जल्द से जल्द अपनी बीमारी से शिफा पाए। हम खासकर दुआ करेंगे भाई जोएल लॉयल के लिए, जो पिछले दिनों प्रभु में सो गए हैं। प्रभु जी इस गमजुदा परिवार पे अपनी सच्ची शांति प्रदान करिए ताकि ये आप में बने रह सके, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदाबंद उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदाबंद सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और इस दुनिया में उनकी मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदाबंद इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उनकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत के कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड वारिस मसीह, हमारे पासवा डॉक्टर रेवरेंड सुरेश, रेवरेंड मॉरिसन और तेरी कलीसिया के तमाम दिगर खादिमों के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। आए रहीम खुदाबंद ये बख्श कि तेरी उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाह की अब्दी खुशी में शरीक हो। आए रहीम खुदाबंद आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यसु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आज की आराधना में, और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों पर, अपनी अपनी जगहों पर स्वस्थ होंगे। परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्ती दी है, हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन मेंबर्स का जो सैटरडे, संडे और वीकडेज में भी आ जाते हैं और चर्च के अंदर प्रार्थना करते हैं, और फिर जो कुछ भी सैटरडे, संडे के दिन उनका ऑफिशियली काम होता है, जो कि मंथली प्लेज और दूसरे ड्यूज़ हैं, वो आकर पे करते हैं। तो मैं उन सब के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस बात का ख्याल रखते हैं। सैटरडे, संडे हमारा चर्च का ऑफिस खुला रहता है, और आप मेहरबानी से जब कभी आते हैं तो अकाउंट सेक्शन में आप जाकर उनसे मिल सकते हैं ताकि आपके अकाउंट्स के बारे में आपको जानकारी मिल सके। हम संडे स्कूल टीचर्स का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शनिवार के दिन संडे स्कूल की क्लासेस जूम पर लगाना शुरू की है, और 4 बजे से शाम को 6 बजे तक ये क्लास चलती है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी पेरेंट्स से, बच्चों से कि अपने अपने संडे स्कूल से टीचर्स से कांटेक्ट कीजिए
ताकि वो आपको लिंक दे सकें और उस लिंक के द्वारा आप जूम के अंदर बैठ सकें और उसमें हिस्सेदारी कर सकें, ताकि परमेश्वर का वचन इन दिनों के अंदर भी सीखा जा सकता है। सेंट थॉमस कॉलेज नोएडा, वहाँ पर बीएड का कोर्स और एलएलबी का कोर्स जो है वो दिया जा रहा है इस साल भी। और बीएड के लिए 50% ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स लाना ज़रूरी है, और या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आप कर सकते हो। ये एडमिशन थ्रू काउंसलिंग जो है वो होगा, और ये माइनॉरिटी स्टेटस जो हमको मिला है उसके अंतर्गत ये किया जाएगा। और एलएलबी जो है वो 3 साल का कोर्स है। आप मेहरबानी से उसके लिए जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर आपके पास नहीं पहुंचा है पोस्टर तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकूं, या और भी किसी चर्च के मेंबर्स के पास, पास्टर कमेटी के मेंबर्स के पास वो अवेलेबल है और वो आपको इसके बारे में बता सकेंगे। इन दिनों के अंदर जो है, जब से लॉकडाउन लगा है और खुला है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है परिवारों के अंदर बहुत हो रही है, और बहुत से लोग थोड़े परेशान हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनको रखा है, संभाला है। मैं चाहता हूं कि एक दूसरे की हम मदद कर सकें, ताकि ऐसे समय के अंदर हम सभी परिवारों को संभाल सकें। हमारे डायसिस के अंदर भी पिछले 3 महीने से हम लोग जो है मैनेज कर रहे थे अपनी सैलरीज़ को, जो हम असेसमेंट के द्वारा से कलेक्ट करते हैं, और अब हमारे पास असेसमेंट के द्वारा से पैसा थोड़ा कम आ रहा है। सैलरीज़ के लिए हम थोड़ी से चिंतित हैं, जो कि पास्टर्स हैं उनके लिए, और इसलिए हम चाहते हैं कि उस तरफ भी हम लोग थोड़ा ध्यान करें कि किस तरह से अपने पास्टर्स को, जो कि हमारे हरियाणा के अंदर है ख़ास कर या दिल्ली में भी हैं, उनको हम संभाल सकें। और इस समय के अंदर जबकि सब तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, आप उसके अंदर कुछ सहयोग दे सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको गाइड कर सकें। आइए इस समय हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, जो हम सबको कोरोना वायरस से मिली है। आपने हमको तंदुरुस्ती दी है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सभी सदस्यों के लिए जो इस कलीसिया में हैं, सभी बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जवानों के लिए, सब पर आप अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। हम इस समय ख़ास तौर से प्रार्थना में याद करते हैं मिस्टर जोएल लॉयल और उनके परिवार को, जबकि पिछले दिनों में मिस्टर जोएल को आपने अपने पास बुला लिया है। परमेश्वर, उस दुखित परिवार पर आप अपना सामर्थ्य का हाथ बढ़ाइए, ताकि वो ऐसे समय के अंदर आपसे शक्ति महसूस कर सकें, और परमेश्वर आपका अश्योरेंस जो आपने हम सबको दिया है उसके ऊपर विश्वास कर सकें कि हम एक बार फिर परमेश्वर के राज्य की उपस्थिति में मुलाकात कर पाएंगे एक दूसरे से। आप उनको शांति और तसल्ली प्रदान कीजिए। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कि बेरोज़गार हुए हैं इस लॉकडाउन के अंदर। परमेश्वर अपने अपने परिवारों में परेशान हैं, आप उनके लिए भी रास्ते खोलिए, ताकि सब तरह से परमेश्वर हम लोग आपके भय में रहकर आपकी महिमा कर सकें और आपके नाम को हम मुबारक कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो कि सिक्योरिटी स्टाफ हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, जो अपने अपने ड्यूटी पर लगे हैं ऐसे समय में। आप उनको और उनके परिवारों को भी आशीषित कीजिए, ताकि सब लोग सुरक्षित रहकर अपने अपनी जगहों पर अपना कार्य कर सकें। हमारे बॉर्डर जो कि देश का है उसमें जो टेंशन है, परमेश्वर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी देशवासियों के साथ, दूसरे देशों के साथ हमारा संबंध और संपर्क बना रहे, ताकि हम मिलजुल कर ऐसे फैसलों को हल कर सकें। हम अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए और सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको अधिकार दिया गया है फैसले लेने का। उनको आप समझ और बुद्धि दीजिए
ताकि ऐसे फैसले लिए जा सके जिससे देश की भलाई हो सके, गरीबों की भलाई हो सके, देश की तरक्की हो सके और हम सब आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर नीरज तिर्की के लिए, जो कि पिछले दिनों में हॉस्पिटलाइज थे और अब वो डिस्चार्ज हो गए। आकृति के लिए जो कि पिछले दिनों में हॉस्पिटलाइज थी और डिस्चार्ज हुई हैं। उन दोनों पर अपना पवित्र हाथ रखिए ताकि वो परमेश्वर आने वाले समय के अंदर भी तंदुरुस्त रह सकें। मिसेस लवीदास, एंजेलिना और उनके परिवार और मिसेस एलिजाबेथ गिरोटी और उनके परिवार और ख़ास करके मिसेस गिरोटी के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सब पर भी अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए ताकि परमेश्वर ये लोग भी तंदुरुस्ती को प्राप्त कर सकें और आपकी महिमा कर सकें। संडे स्कूल के टीचर्स के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप उन सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए ताकि सब लोग विश्वास के अंदर मजबूत रहकर इस कार्य को जो वो करते हैं उसमें आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us.